Dear students, welcome to the class today. Children, we are carrying on with the revision work and we are in through the revision work of this third chapter, electoral politics. In the last video, we discussed about the importance of elections and what is the role played by the people in these elections. How does elections signify democracy? What is the importance of democracy? Is it necessary to hold elections? And we came to the conclusion that yes, it's quite necessary to hold elections. Got it? So, after talking about these, we started to understand elections are happening. Then, how are elections held? कैसे होता है? सबसे पहले the whole country is divided into constituencies. This we have done in the last class, where the constituencies are divided. Holding elections in the whole country, 130 crore people should get a chance to vote. Everybody, making provisions for everyone for voting is a big task. But then, that is what is the task of the election commission, and they very well perform their duty. Reserve constituencies में क्या है? Now we will understand कि constituency तो divide हो गए, but there are some reserved constituencies. Some constituencies are reserved for certain categories. क्यों? Every citizen can elect her or his representative, and they are to be elected as representative. Constitution ने क्या किया? They were worried. किस चीज के लिए? कि there is open competition going on, electoral competitions are going on. There are certain sections, certain weaker sections, who are not getting a good chance to get elected. ठीक है? So, certain weaker sections are not getting a fair chance. नहीं, वोटिंग तो चांस मिल रहा है. A fair chance to get elected to the Lok Sabha. Fair chance to get elected to the Lok Sabha or State Assembly. सबको फेयर चांस मिलना चाहिए. सो द पीपल हु वर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, दे मेड इट वेरी श्योर कि हम ये फेयर चांस की बात कर रहे हैं, क्या लोगों को फेयर चांस मिल पाएगा? ओके, सो दे विल हैव द इक्वल रिसोर्सेज, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स. माइट बी पॉसिबल कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या जो जंगलों में रह रहे हैं, the tribal people are there, the scheduled castes are there. So those who are influential and resourceful, वो सोचेंगे कि ना इनको तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, they should not participate in the election. और अगर ऐसा होगा, if that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of population. इतने सारे लोग रह रहे हैं कंट्री में, हर एक लोग को फेयर चांस मिलना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. यस माय डियर चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन somebody might not be deprived of this chance
कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि ये चांस नहीं मिल रहा है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में दिस वॉज डन, दिस प्रोविजन वॉज मेड that reserved constituencies were there for weaker sections. Some constituencies were reserved for weaker sections. ओके, इसमें क्या है वीकर सेक्शंस में? लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. मैंने बताया था, आई गेव यू वन एग्जाम्पल इन द क्लास कि देयर आर ट्राइबल पीपल, जंगलों में जो रहते हैं. समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट, they can also stand for election. Election में उनको भी खड़ा होने का पूरा हक है. So the seats that are reserved in Lok Sabha currently, आज की डेट में, as per the data of 2019, there are 84 seats reserved for scheduled caste. 84 seats constituencies में reserved for scheduled caste and 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 seats for scheduled tribes. नंबर याद रखना है आपको. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर वेरी मच अवेयर कि अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर जस्टिस गिवन टू ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी. वोटिंग राइट्स अगर सबका हक है तो इलेक्शंस में खड़े होना भी सबका हक है. हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. So on the basis of this caste system, no caste should be, dominated or put down. So reserve seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any social group. Every social group is getting a fair chance to contest in the election. This is something very remarkable. ये जो reservation था, it was extended later on. बाद में क्या हुआ? Later reserved seats were extended to other backward classes, OBCs. कुछ सीट्स इसमें उनको भी दी गई हैं फॉर द ओबीसीज. यस, ओके. अदर वीकर सेक्शंस, मेनी स्टेट्स में सीट्स जैसे रूरल में एंड अर्बन में, रूरल स्पेशली फॉर पंचायत एंड अर्बन रीजन, पंचायत इलेक्शंस में एंड अर्बन रीजन्स में द सीट्स आर नाउ रिजर्व्ड. पंचायत इलेक्शंस and urban regions seats are reserved. अभी क्या हो गया है, विमेन के लिए तो बहुत सारे सीट्स रिजर्व है. विमेन हैज ऑल्सो गॉट 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विमेन. ये कब हुआ? ये 1992 में हुआ. दिस यू विल बी स्टडिंग नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर आप 10th क्लास में इसको आपको पढ़ना है कि अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन.
गॉट इट। अब सीट्स रिजर्व हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गए, हाँ इलेक्शंस करना है भाई, करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? What is the next thing to be done? Constituencies are divided, reserved constituencies are also seen, scheduled caste, scheduled tribe, सारे लोगों को facilities मिल गई so that they can get a chance to participate in the elections. Okay? ये सारे लोग जब participate कर रहे हैं elections में तो problem क्या है? Now the next thing that is to be taken care of is voters list. कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे वोटिंग होगी ये तो हो गया, लेकिन कौन वोटिंग करने जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट? यस, देयर स्टूडेंट्स, देयर इज अ कैटेगरी विच कैन नॉट वोट। ये एनीवन, इट कैन नॉट बी लेफ्ट टिल द लास्ट डे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या है? लिस्ट हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, सबको दे दिया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्टोरल रोल। ये लिस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड, लिस्ट ऑफ सिटीजन गोइंग फॉर voting is electoral list. इसको क्या कहते हैं? This is called as electoral list. Got it? Electoral list, or you can say electoral roll. Now, this is also called as the voters list. 2024 में नेक्स्ट इलेक्शंस हैं। अभी क्या काम हो रहा है? व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन डूइंग? यस, इट इज प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। 4 साल के बाद, 4 साल, हाँ 2021 आ ही गया ना, तो 3 साल के बाद इलेक्शंस है। सो 3 साल के बाद जब इलेक्शंस हैं तो लिस्ट तो उसकी अभी से तैयार करनी है। दे आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट। सो an important step, because first condition of democratic election is equal. This is a very big task, because equal opportunity to choose representatives. Everybody should get a chance to choose their representatives. So equal opportunity to elect representatives. Nobody should be deprived of that. Choose representatives. पहले क्या था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज देयर, अभी भी है। इट मीन्स दैट एवरीवन शुड गेट, नोबडी शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट। एक कारण होना चाहिए कि वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा है। ओके, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सबको, लेकिन with their own needs, everybody has got their own needs, everybody has got their own views. कौन सा कैंडिडेट को वोट करना है, किसको नहीं करना है, they decide it. Okay, so the criteria खाली एक ही है, rich, poor, caste, ये कोई criteria नहीं है। criteria is anybody and everybody above the age of 18. Above the age of 18 has right to vote. This concept, ये जो आप 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, this concept is called as universal adult franchise. Got it? लेकिन क्रिमिनल पीपल एंड अनसाउंड माइंड, जो थोड़ा सा मतलब कि जिनका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, द पीपल हुज माइंड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिया जाता है, उनको नहीं। ठीक है, मेंटल असाइलम में जो लोग हैं उनको क्या पता पॉलिटिक्स के बारे में। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि ऑल द एलिजिबल वोटर्स आर देयर इन द वोटर्स लिस्ट, सबका नाम लिस्ट में होना चाहिए।
कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस आफ्टर 5 साल के बाद जो लिस्ट बनी हुई है, एवरी 5 years इट इज रिव्यूड। कितने लोग सम दे हैव पास्ड अवे, कितने हैं जो कि अभी 18 से 19 में, व्हेन यू विल बी 18 years ओल्ड, तो अब 18 आपको वोटिंग लिस्ट में नाम आना है तो आपके लिए वोटर आईडी कार्ड तैयार होगा। तो दिस इज देयर फॉर दैट photo identity card has been introduced which is also called as voter ID card। ये सारी पर्सन को मिलता है who has got the right on the voters list and they have to carry this voters ID card। ये कार्ड कैरी करना पड़ता है, लेकिन फॉर वोटिंग के लिए क्या है, वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आजकल में ये है कि आप आइडेंटिटी के बहुत सारे प्रूफ दिखा सकते हो एंड यू कैन इजिली गो एंड वोट। आप आराम से जाके वोटिंग कर सकते हैं। ओके, वोटर्स लिस्ट तैयार हो गई। दिस इज हाउ द सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस पहले की इलेक्शन कमीशन, इट इज बिग टास्क, छोटा मोटा काम नहीं है ना। सो फॉर दिस बिग टास्क पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल आर कैरिंग ऑन देयर वर्क। इसके बाद क्या है, नॉमिनेशन of candidate। ये क्या होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एनी बडी कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है, एनी बडी हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बी अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। 18 years एंड खाली ये है कि एज ब्रैकेट इज 25, एज इज 25 फॉर नॉमिनेशन। आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं 25 साल की एज तक वेट कीजिए, प्लीज वेट। ओके, एंड कुछ और रेस्ट्रिक्शंस है, क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा है कि द इलेक्शन कमीशन इज वेरी स्ट्रिक्ट। दे डू नॉट गिव द वोटिंग, दे डू नॉट गिव द फाइल। नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट को फॉर्म तभी नहीं मिलता है जबकि बहुत बड़ा कुछ चार्जेस हो। पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉमिनेटिंग देयर कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल बिग पॉलिटिकल, भाजपा, बसपा, सपा, ओ गॉड, एक टिकट, कैन यू बिलीव इट, 2 करोड़ 3 करोड़ का टिकट देते हैं। एंड देन देयर आर कैंडिडेट्स हु आर स्टैंडिंग विद दैट मनी कि हाँ हम देंगे, अपना जायदाद बेच के कीमत। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर पावर, सब कोई पावर में आना चाहता है। बिलीव मी चिल्ड्रन, दैट इज देयर। ओके, सो आई वॉन्ट टू बी अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन। क्या कर रहे हैं अब, सबसे पहले fill the nomination form and सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट। आई एम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस, तो इलेक्शन कमीशन को मेरे को कुछ पैसे देने होंगे। देयर हैज टू बी अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एज वेल। गॉट इट? इसमें क्या है, एक न्यू सिस्टम आ गया है आजकल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। दे हैव टू, सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया था कि कोई भी आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने लगता है, वेदर एलिजिबल नॉट एलिजिबल, द क्रिमिनल माइंड्स, हीनियस क्राइम्स दे हैव डन, जेल जा चुके हैं, फिर भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जीत जाते हैं। तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड, एंड यू नो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन जुडिशरी में, working of institutions we have already read। तो highest institution Supreme Court has issued an order। क्या क्या देना है, a candidate has to make a legal declaration। A candidate has to make legal declaration। क्या डिक्लेयर करना है, दे हैव टू, सबसे पहले उनको क्या चीज बताना है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। कोई कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है
and especially criminal cases. Serious criminal cases pending against कैंडिडेट, बहुत सीरियस केस है तो उनको जो है नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिलेगा. यस, दे विल नॉट गेट द नॉमिनेशन फॉर्म ओनली. डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट. डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड liabilities of the candidate. या कितना पैसा है, क्या है, प्रॉपर्टी कितनी है. कितनी बार क्या होता है कि अर्निंग ऑफ द फैमिली इज ओनली 10 लाख रुपीज एंड प्रॉपर्टी 2 करोड़ की, 3 करोड़ की. तो दे आस्क कि आपके फैमिली में अर्निंग जो है, एग्रीकल्चर आपकी खेती है एंड आप एनुअल इनकम अपना 10 लाख रुपीज दिखा रहे हो, तो प्रॉपर्टी आपकी 1.5 करोड़ 3 करोड़ की कैसे है. द इलेक्शन कमीशन आस्क्स एंड देन वन थिंग दैट इज टू बी डिक्लेयर्ड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. Anybody and everybody can contest the elections. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट अ बॉन्डेज. ये किसी ने भी बताया नहीं है कि 10th पास ही होना चाहिए या ग्रेजुएट ही होना चाहिए, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस दैट टू सर्व द कंट्री, टू बी अ नेता, हाउ डज माई एजुकेशन मैटर. आई कुड बी एन इलिटरेट बट आई कैन बी बेटर देन thousands of learned people. हजारों पढ़े लिखे लोगों से मैं कहीं बेटर हूं. तो व्हाट इज द नीड ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अब क्या होता है, वोटर्स को पता चल जाता है कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं. एवरीथिंग इज मेड पब्लिक. एमएलए एंड एमपी बनने के लिए टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न, प्रॉब्लम, देयर इंटरेस्ट, देयर रिक्वायरमेंट्स, वेदर दे कैन डू सो और नॉट. हमारी कंट्री में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इट कैन गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं. सो इफ वी बाइंड द कैंडिडेट विथ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तब तो बहुत प्रॉब्लम है. इट इज अ डिफिकल्ट थिंग. बहुत ही पिछड़े इलाकों में, इन वेरी बैकवर्ड एरियाज, मेनी कैंडिडेट्स आर देयर हु आर वेरी टैलेंटेड, but then they do not get a chance to contest the election just because they are not educated. क्या मतलब बनता है? That's why to keep the spirit of democracy, a real sense of democracy, this is there. लेकिन many people oppose it कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या समझ है और वो क्या देश की सेवा करेगा. ठीक है, everybody has their own opinion. सबका अपना अपना ओपिनियन है. बट इन डेमोक्रेसी मेनी थिंग्स आर देयर दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ. खाली बोलने के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, वी हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो. गॉट इट. चलो भाई, वोटर लिस्ट तैयार हो गई, नॉमिनेशन हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमको क्या करना है, अब कैंडिडेट्स क्या करेंगे. अरे नॉमिनेशन के लिए जाते हैं ना, वहीं से कार्यक्रम शुरू हो जाता है. यस, खूब सारी भीड़ जाती है. देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु गो. Thousands of people, who go for nominations. इसके बाद शुरू होता है कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेन. लोगों को पता चलना चाहिए ना, who are the candidates standing in the election. So lot of slogans are there, lot of promises are made. याद है वो ऑफिस मेमोरेंडम, जनता दल, दे हैव प्रॉमिस्ड कि रिजर्वेशंस लगाएंगे, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे, और उन्होंने ये काम किया. दे हैव डन इट. तो आप को ये सब काम करना है, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी अलर्ट एनफ कि आप लोगों से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं. बिकॉज आफ्टर लिसनिंग टू द प्रॉमिस, मेनी पीपल गिव वोट ऑन दैट बेसिस ओनली, वॉट एवर द कैंडिडेट हैज प्रॉमिस्ड. Okay,
सो इलेक्शन था, देयर आर सम लॉज, कैंपेनिंग के टाइम में सम लॉज आर टू बी फॉलोड. व्हाट आर दीज लॉज? ये लॉज क्या है? मेनली nobody can bribe or threaten the voters. वोटर्स को कोई भी धमकी नहीं दे सकता है. अपील टू देम इन नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. अपील टू देम इन नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन. कि हम आपके कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के लोगों को वोट दो, अपर कास्ट के लोगों को वोट करके क्या होगा? अरे व्हाई आर यू सेइंग ऑल दीज थिंग्स? एंड देन नोबडी कैन यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन. नो यूज ऑफ गवर्नमेंट resources for election campaign. एक भी पैसा गवर्नमेंट का यूज नहीं करना है. कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं आप, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, तो अपने दम पे कीजिए. यू कैन नॉट, नो बडी कैन यूज गवर्नमेंट मनी. सो मेनी पार्टीज आर देयर. तो वो कहेंगे कि आपके बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर, तो यू आर यूजिंग द गवर्नमेंट व्हीकल. इवन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कैंपेनिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो किराए की ही गाड़ी पे जाएंगे, या किसी की गाड़ी है, सम कैंडिडेट हैज गॉट सम व्हीकल, वो व्हीकल यूज करेंगे. ओके. एंड नोबडी कैन स्पेंड मोर देन 25 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. Nobody can spend more than 25 lakh. ठीक है, 25 lakh से ज्यादा इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन लोकसभा. ठीक है. लोकसभा इलेक्शंस के लिए 25 लाख का ब्रैकेट है. एंड फॉर असेंबली इलेक्शंस ठीक है, असेंबली इलेक्शंस इट इज 10 lakh. बस आपको इतना ही हिसाब देना है पूरा. Election Commission is very strict on certain things. How much money is spent and what money is spent, और किस तरह से लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है. Yes, believe me children, I'm using these terminologies because this is done on a very large scale. बहुत ज़्यादा ही होता है ये चीज़ें. Got it? We'll continue in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you. Students, I wanted to show you this list of constituencies. The constituencies, the whole of the country is divided into different constituencies. मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कहाँ पे कौन सी सीट रिज़र्व है. For example, dear students, reserved for scheduled caste and reserved for scheduled tribe. I will take only UP. ठीक है, चलो यूपी देखते हैं. जस्ट चेक यूपी. ओके. अब आप ये देखो, दिस इज उत्तर प्रदेश. हाँ, ये आप देख लो यहाँ की कुछ सीट्स हियर. तो आप जहाँ जहाँ पे रिजर्व सीट्स देख रहे हो, please understand that these are the seats which are reserved for the lower caste people in that region. यहाँ के जो लोअर कास्ट होंगे ना, वो they might be in large number located here. तो चूंकि ये लार्ज नंबर में यहाँ पे लोकेटेड हैं, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि वहाँ के कैंडिडेट्स को फेयर चांस मिलना चाहिए.
सो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया हुआ है. ओके, दे हैव आस्क्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट. ट्राइबल देख लो सबसे पहले, ज़्यादातर ट्राइबल जहाँ हैं, हियर दिस इज़ MP छत्तीसगढ़ ट्राइबल्स. ठीक है, अब ये देख लो आप, दिस आर द ट्राइबल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान. ट्राइबल्स हैं यहाँ पे. देन वी फाइंड ट्राइबल्स ऑफ तेलंगाना. ये देख लो तेलंगाना. हाँ, तो जहाँ पे वेर एवर देयर आर पीपल इन अबंडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा या कास्ट है या ट्राइब है, वहाँ पे ये कमिटीज़ बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिजर्व कर दिया गया है. एंड यू विल हार्डली फाइंड एनी ट्राइबल पीपल इन दिस रीजन. तो यहाँ पे कास्ट हैं, उनके लिए सीट्स आर रिजर्व्ड. गॉट इट? दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.